cell as unit of life, that is eukaryotic cell. Okay, today we are discussing about what? Eukaryotic cell. Eukaryotic cell. So what is the meaning of eukaryotic cell? EU, U means true and karyotic means nucleus. Those cells which having true nucleus in it are called as eukaryotic cell. Basically in nature there are two types of cells are found. One is prokaryotic and second is eukaryotic. Yesterday in the last class we had discussed about the prokaryotic cell, and today we had discussed about the another type of cell, that is eukaryotic cell. So what is the meaning of eukaryotic cell? Having true nucleus. Okay, true nucleus, well organized nucleus is present in that cell. Developed nucleus found in that cell called as eukaryotic cell. So what are the characteristics of this cell? What are the different characters of this cell? They have well organized nucleus in each. Okay, and which are the different cell organelles are present in each. Remember, eukaryotic cell, membrane bound cell organelles also present, like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies. Okay, so chloroplast, lysosomes, these are called as membrane bound cell organelles also present in it. DNA in the eukaryotic cell is having histone protein with it. Okay, DNA के साथ, DNA में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है वो अंदर पैक होने के लिए, ओके, मतलब पैकिंग प्रोसेस होती है, and that packaging process requires histone protein in the eukaryotic cell. Okay, so DNA is also with histone protein. Then membrane bound cell organelles also present, especially nucleus is present here. This is the structure of cell. Overall structure of cell already I told you, and in the cell this structure is called as cell membrane, outermost of cell membrane. Okay, then inside the cell membrane there is the cytoplasm, and centrally located structure is called as nucleus. So those cell having nucleus in each, okay, this is called as nucleus. तो जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज नथिंग बट chromosomes, and on that chromosome genetic material DNA is also found. ना क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, DNA एंड जेनेटिक मटेरियल फॉर्म होता है. सो व्हाट इज द बेसिक फीचर इज having membrane bound cell organelles, having what nucleus present in it, and presence of membrane bound compartment is there in the cytoplasm. Inside the cytoplasm there is the formation of compartmentalizations. Compartmentalization means having different compartments. अलग अलग compartment form होते हैं cytoplasm में, and in that compartments different cell organelles are found. That is here, this is the mitochondria. Okay, in some of the cell mitochondria is also there. This is what endoplasmic reticulum, that may be smooth endoplasmic reticulum or rough endoplasmic reticulum. Okay, if they have ribosome on the surface, if the endoplasmic reticulum having ribosome on the surface are called as RER, rough endoplasmic reticulum, and if they having no ribosome on the surface, that means they are called as SER. SER means smooth endoplasmic reticulum, and both are combined called as endoplasmic reticulum. Okay, they are also having Golgi bodies on the side of endoplasmic reticulum. Golgi bodies are there, Golgi complex are there. So these are all different cell organelles are present in the cell. Okay, they are also having complex locomotor and cytoskeletal structure. Inside the cell, complex locomotor structure is present. That means some of the eukaryotic cell also having flagella. कुछ यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी लोकोमोशन करने के लिए क्या रहता है, फ्लैजेला रहता है, या फिर सीलिया भी प्रेजेंट रहते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, एंड दैट इज समवट कॉम्प्लेक्स टाइप, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है. एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर इज आल्सो देयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर? दे आर मेड अप ऑफ
different types of tubulin proteins, and that cytoskeleton provide framework to the cell. Cytoskeleton generally nothing but the structure which provide framework in the cell. Okay, for arrangement of cell organelles in the cell, it need साइटोस्केलेटन सिस्टम. साइटोस्केलेटन की जरूरत है. साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब इंटरनल फ्रेमवर्क फॉर्म करने के लिए साइटोस्केलेटन चाहिए, फाइबर चाहिए. एंड जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम. रिमेंबर, इन द यूकैरियोटिक सेल DNA is packed to form chromosome. So genetic material is packed in the chromosome. Unlike that in prokaryote, you know, there is no chromosome basically. That is the genetic material present in the form of nucleoid. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, जो जेनेटिक मटेरियल था वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर था, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं था. ओके, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते थे. मगर यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या क्रोमोसोम, उसको बाइंड करने के लिए क्या है, ओके, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और क्रोमोसोम इज बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? The structure which encloses in the nucleus are called as nuclear membrane. So this is about the characteristic of eukaryotic cell. ये पूरा क्या है, characteristic है किसका, eukaryotic cell का. ठीक है. Now one by one we will now discuss about the eukaryotic cells and their cell organelles. Okay. So which are the cell in the eukaryotic cell? Eukaryotic cell include protista, fungi, plantae and animalia. Means they having nucleus in it. यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आता है? प्रोटिस्टा आते हैं. बड़ी प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोटिस्टा इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. उसके बाद फंगाई भी आते हैं. उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल तो कंफर्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, सो दीस आर ऑल सेल. देन इसमें कंप्रोमाइज होता है, मैंने बोला आपको, न्यूक्लियर एनवलप होता है. Nucleus is surrounded by nuclear membrane, also called as nuclear envelope, and inside nuclear envelope there is a genetic material present in the form of chromosomes. Chromosome present रहते हैं. यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल्स है, they are not identical to each other, they are different from each other. Okay, and large central vacuole जो है, okay, एनिमल सेल में vacuole absent है या very small है. But in plant cell, vacuole is very large. Okay, centrally located in the plant cells. Okay, then in the animal cell, there is the presence of centriole also. What is centriole? The cell organelles help in the cell division. जो spindle fiber form करता है, मैंने पहले बोला आपको, तो centriole form होता है animal cell में. Okay, plant cell में chloroplast form होता है, उसको हम ring plastid बोलते हैं. Plant cell में center में vacuole form होता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है प्लांट सेल का वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है. सो दिस इज अबाउट द प्लांट सेल. ओके, देन प्लांट सेल में फंगाई में इन फंगाई एंड इन सम प्रोटिस्टा आल्सो दे हैव सेल वॉल. प्लांट सेल में फंगाई में और प्रोटिस्टा में क्या रहता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट रहता है. ओके, और दे आल्सो हैविंग प्रोटोप्लाज्म इन द प्लांट सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट. The protoplasm inside the plant cell is called as protoplast. And what is the meaning of protoplast? Protoplast का meaning क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला था. Protoplast is also called as physical base of life. Protoplasm. Okay, जिसमें क्या होता है? Cell minus cell wall. Cell minus cell wall. मतलब सेल से अगर क्या करोगे आप, सेल वॉल निकाल दोगे, तो जो रहने वाला मटेरियल है उसको बोलते हैं प्रोटो प्लास्ट कहते हैं. कहाँ पे? प्लांट के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. ओके, प्लांट सेल के अंदर. एंड साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट द, आपको बोला था मैंने, सेल के अंदर आयरन ऑफ के काम करता है वो. मेनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑकर इन द साइटोप्लाज्म. ओके, आयरन ऑफ सेल कहते हैं उसको. और वो कलरलेस है, होमोजेनस है, ट्रांसलूसेंट है, अमॉर्फस है, कोलाइडल है, कौन? साइटोप्लाज्म. उसके बाद मैं आपको सेल के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल कौन सी है? मैंने आपको पहले ही बोला है. ओके, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन द प्लांट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो है प्लांट सेल के अंदर वो है न्यूक्लियस. वैसे तो वैक्यूल है, बट
सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो न्यूक्लियस है, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो है प्लांट में, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट में और एक बार बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस है, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, और सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द एनिमल सेल कॉल्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में सेकंड लार्जेस्ट कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन नथिंग बट द राइबोसोम। सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनेल है वो राइबोसोम है। तो आपको ये भी पता होगा कि हर एक सेल ऑर्गेनेल्स को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। जैसे न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ सेल बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। ओके, जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। दैट मीन्स डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैव डिफरेंट नेम। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनका क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उनका नाम दिया गया है। ओके, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट सेल में अभी हम डिस्कस करने वाले थे यूकैरियोटिक सेल, वेयर स्टार्ट विद द सेल मेम्ब्रेन। हम जो बाहर से अंदर जाते हैं ना, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल absent है, इन एनिमल सेल सेल वॉल इज absent। ओके, इन एनिमल सेल सेल वॉल इज absent, बट इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट। ओके, अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। तो पहला जो पार्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? दे आर मेड अप ऑफ phospholipid bilayer. Cell membrane is made up of phospholipid bilayer, and cell membrane, the cell membrane studied by the Nicholson and Singer and Nicholson, that is called as fluid mosaic model. Okay, cell membrane का जो स्ट्रक्चर है, okay, उसको हम बोलते हैं fluid mosaic model of cell membrane studied by Singer and Nicholson. These are the two scientists. Okay, so what is the characteristic of cell membrane is they are made up of lipid bilayer, phospholipid bilayer से बनता है, जिसमें हम डायग्रामेटिकली देखोगे तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है, बाहर जो है मेम्ब्रेन में बाहर जो है उसको हम बोलते हैं हेड, और अंदर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? अंदर का पार्ट टेल है ना। सो दिस हेड इज जनरली कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स। हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर से क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल पास होते हैं, और टेल जो है अंदर है ना, तो हेड इज जनरली हाइड्रोफिलिक। हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। एंड टेल इज जनरली, दिस इज कॉल्ड एज टेल इज जनरली हाइड्रोफोबिक है ना। ओके, और इन बिटवीन दैट टू देयर इज सम प्रोटीन इज देयर, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन भी है जो इंट्रांसिक प्रोटीन एक्ट करते हैं ना, एक्ट्स एज ए इंट्रांसिक प्रोटीन। सम ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन आल्सो, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। Okay, what is the meaning of integral protein? Those protein binded inside the cell membrane is called integral protein. Okay, और ये क्या है? This is nothing but the carrier protein. Carrier protein. What is the carrier protein? Those protein present inside the membrane, but help to transport, carry some of the molecule through them are called as carrier proteins. Okay, so lipids are added with the membrane are hydrophilic and polar head towards the head. कहाँ है? Head is generally present towards outside and tail is present inside. Okay, and हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो नॉन पोलर पार्ट में आता है। हाइड्रोफोबिक टेल जो है नॉन पोलर पार्ट में आता है, एंड हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो पोलर मतलब आउटसाइड, जो पोल में है आउटसाइड में है वो पोलर है, और हाइड्रोफिलिक है। ओके, और जो नॉन पोलर है, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? हेड को हम बोल सकते हैं दैट इज पोलर, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज नॉन पोलर। टेल इज जनरली नॉन पोलर, मतलब पोल को नहीं है ना, उसको नॉन पोलर बोल सकते हैं। और ड्यू टू द नॉन पोलर टेल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोटेक्ट द एक्वियस एनवायरमेंट्स। तो नॉन पोलर कैसा है? ये क्या करता है? नॉट अलाउ
ओके एक्वेस एनवायरनमेंट्स, ओके नॉट अलाउ वाटर, वाटर को अलाउ नहीं करता है कौन, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है टेल वो वाटर को अलाउ नहीं करते हैं. सो एंड दे आर हैविंग फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन एंड दे आर हैविंग आल्सो व्हाट कोलेस्ट्रॉल एट द समवॉट प्लेस. कुछ जगह पर उसमें क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इज आल्सो देयर, cholesterol molecule is also there. Okay, cholesterol. So what is the meaning of cholesterol? This is nothing but the oily substance membrane और उसके अंदर phosphoglyceride रहता है. Cholesterol contain phosphoglycerides in it. Cholesterol molecule is also present inside the cell membrane. Okay, phospholipid या phosphoglyceride रहता है उसके अंदर. तो सेल के अंदर क्या क्या है, मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा हूँ. सेल मेम्ब्रेन पहला है, उसके बाद कभी कभी सेल वॉल में रहता है, उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, मैं आपका नाम बता रहा हूँ उसको. उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, ये पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के आते हैं, अंदर आते हैं. उसी के साथ यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड रहता है प्लांट सेल में, प्लास्टिड रहता है प्लांट सेल में, राइबोसोम रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, साइटोस्केलेटन है जो सेल को फ्लेम ऑफ सप्लाई करता है, सीलिया एंड फ्लैजेला भी रहते हैं जो लोकोमोशन करने की हेल्प करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला. सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी है जो सेल डिवीजन के लिए हेल्प करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं. सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो एनिमल सेल में रहते हैं. उसी के साथ न्यूक्लियस तो है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस कंपल्सरी होगा. और माइक्रोबॉडीज रहते हैं, some microbodies also there, okay, inside the cell. So these are all component of the cell. Cell के अंदर components है ना. बाद में अभी हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर फोकस करते हैं. सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली स्टडीड इन द ह्यूमन आरबीसी. अगर ह्यूमन आरबीसी का आप सेल मेम्ब्रेन स्टडी करते हो, ह्यूमन आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन स्टडी करते हो, तो उसके अंदर क्या है बेटा, लिपिड लेयर है. दे आर कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर्स. और लिपिड बाइलेयर जो है, लिपिड बाइलेयर मैंने आपको पहले ही बोला है, इसके अंदर क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा. ओके, प्रोटीन है, कितना है प्रोटीन, दे आर कंसिस्ट ऑफ लिपिड मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स. मैंने बोला था आपको प्रोटीन है और लिपिड भी है. और लिपिड कौन सा है, लिपिड इज जनरली फॉस्फोग्लिसराइड्स. जो लिपिड है वो फॉस्फोग्लिसराइड्स है और उसी के साथ साथ उसमें प्रोटीन भी है और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी है. कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो देयर, पॉलीसैकेराइड्स इज आल्सो देयर अलोंग विद द मेम्ब्रेन्स. ओके, तो अगर आरबीसी के बारे में आप देखते हो, आरबीसी में तो यहाँ पे क्या आउटर पोलर हेड, मैंने बोला आपको पहले जो बाहर का पार्ट उसको पोलर बोलते हैं, हेड बोलते हैं. और हेड कैसा है, हाइड्रोफोबिक है. हेड इज जनरली हाइड्रोफिलिक. ओके, जो पोलर बोलते हैं. एंड हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल है ना. हाइड्रोफोबिक क्या है, टेल है. ऐसे दो पार्ट रहते हैं. ओके, एंड सैचुरेटेड है एंड हाइड्रोकार्बन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वेस एनवायरनमेंट्स. इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड में हाइड्रोकार्बन होते हैं. ओके, क्या रहता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं इसको, सेल को, किससे, एक्वेस एनवायरनमेंट मतलब बाहर का जो वाटर है उस वाटर को अंदर नहीं आने देता है. कौन, टेल मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो हाइड्रोकार्बन से बना है, जो नॉन पोलर पहचाना जाता है, जो वाटर को अलाउड नहीं करता एक्वेस एनवायरनमेंट से, उसको प्रोटेक्शन करता है. मैंने आपको बोला था अगर आप आरबीसी में देखना चाहते हो, तो आरबीसी में प्रोटीन कितना है और लिपिड कितना है. प्रोटीन है आरबीसी में 52% प्रोटीन है एंड लिपिड इज जनरली 40%. याद रखो, नीट में कुछ क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर. इन ह्यूमन आरबीसी द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ -% प्रोटीन एंड -% लिपिड, दैट इज 52% प्रोटीन and 40% lipid is present in the human RBC inside the membrane. And based on the age of extraction, membranes proteins are of two types. एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन है. कौन से, वन इज इंटीग्रल प्रोटीन, मैंने पहले नाम दिया है यहाँ पे. इंटीग्रल प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन है बेटा कि जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं.
घुसते हैं मतलब एंट्री करते हैं इसके अंदर, पार्शियली और टोटली बरीड होते हैं कहाँ पे, मेम्ब्रेन के अंदर, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, वो इजीली निकल नहीं पाते, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और दूसरे जो प्रोटीन है वो पेरिफेरल प्रोटीन है, मतलब वो निकल सकते हैं बाहर, ओके, कभी भी अगर मेम्ब्रेन रफ हुआ तो बाहर निकल जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल protein. That means this protein is peripheral, present outside, attached outside, बाहर से अटैच होते हैं, ओके, lie on the surface of membrane and easily remove हो सकते हैं ना, कौन, peripheral protein. Remember this cell membrane, मैंने आपको पहले बोला है, this cell membrane is called as fluid mosaic model. आप बोले इसको fluid क्यों बोलते हैं, because there acts as a quasi fluid, वो हिलता है, सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, हिलता है, इसलिए उसको कहा गया है फ्लूइड। और मोजाइक क्यों कहा है, क्योंकि उसके ऊपर आपको स्पॉट मिलते हैं ना, अलग अलग कलर के प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, अलग अलग कंपोनेंट्स उसके ऊपर मिलते हैं, सो इट अपीयर मोजाइक, सो कॉल्ड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। एंड दिस फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज proposed by Singer and Nicholson, okay, in 1972, and according to this model this is called as quasi fluid nature है इसका, okay, and lipids are enable lateral movement and proteins within the overall bilayers. तो इसमें से क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल पास हो पाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाते हैं, कहाँ से, मेम्ब्रेन में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है पास थ्रू द मेम्ब्रेन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है, कौन से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, कौन से, O2 and CO2. O2 and CO2 is called as non-polar molecules. So that non-polar molecules जो है O2 and CO2 जैसे गैस जैसे मेम्ब्रेन से कहाँ से भी पास हो सकते हैं। और जो मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करता है, कुछ को नहीं करता है, ओके। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेम्ब्रेन, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन मेजर्ड बाय इट्स फ्लूइडिटी। तो इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहा गया है, क्योंकि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कितनी है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कितनी है, जो मॉलिक्यूल को अलर्ट कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल, मेम्ब्रेन के द्वारा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, सम ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट आउटसाइड और इनसाइड कैन बी अलाउड विद द हेल्प ऑफ दैट मेम्ब्रेन। एंड ड्यू टू द फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन द ग्रोथ। फ्लूइड नेचर के होने की वजह से, मेम्ब्रेन की वजह से क्या होते हैं, एनिमल सेल में सेल का ग्रोथ हो सकता है, मेम्ब्रेन इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड है, हेल्प इन द ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू में बोला था मैंने आपको, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडरी जंक्शन फॉर्म होता है, जंक्शन फॉर्म होता है, सिक्रेशन करते हैं कभी कभी, ओके। एंडोसाइटोसिस करते हैं, मतलब सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस लेते हैं, एंडो मतलब इनसाइड, अमीबा में वगैरह सेल के अंदर कुछ फ्लूइड ऑब्जॉर्व करते हैं एंड सेल डिवीजन के लिए भी हेल्प करते हैं, कौन, सेल मेम्ब्रेन। वाई, बाय फॉर्मिंग ऑफ क्लीवेज, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्लीवेज फॉर्म होता है और वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन के लिए हेल्प करते हैं। सो दिस इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के जो टाइप्स है वो के ट्रांसपोर्ट जो करते हैं, ट्रांसपोर्ट दो तरीके का ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Now this is about the plasma membrane, and plasma membrane is the nothing but semi-permeable membrane, and that semi-permeable membrane help to transport some of the molecule through it. Okay. Now in the last class we discussed about the other prokaryotic cell membrane and eukaryotic cell membrane also. Basically, in prokaryotic cell as well as eukaryotic cell, the membrane is same. Okay. Plasma membrane is same. And what are they made up of? They are made up of phospholipid bilayers, and in that phospholipid bilayers, the outer portion is called as head and inner portion called as tail. So this head is generally hydrophilic and tail is generally hydrophobic. Okay, so that is the structure of plasma membrane. So plasma membrane helps in the transport of molecules through them. Okay, and due to fluid nature, plasma membrane help in the growth. Due to presence of fluid nature in the plasma membrane, they help in the growth of cell as well as formation of intercellular junctions in between two cells. The junction is formed called intercellular junction, as well as
plasma membrane help in the secretion also. Okay, what? They help in the secretion also. And endocytosis. Endocytosis means endo means in and cytos means cell. सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस को लेने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करते हैं. दिस इज अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और आपको मैंने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है. जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है दो टाइप के हैं. वन इज इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर बसे हुए हैं और जो एक्सट्रांशियल प्रोटीन जो बाहर से अटैच होते हैं. कुछ प्रोटीन अंदर रहते हैं उसको हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं. और याद रखिए पोलर मॉलिक्यूल जो है कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर्स. एक्चुअली मॉलिक्यूल दो टाइप के रहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. सो रिमेंबर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल में से जो पोलर मॉलिक्यूल है कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर्स. पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो पाता है. ओके, एंड दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन. तो उनको जाने के लिए इसको पोलर मॉलिक्यूल जो है कौन पोलर मॉलिक्यूल को जाने के लिए ओके क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन चाहिए. क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं जा पाते कहाँ से? नॉन पोलर एंड से. क्योंकि दे आर नॉन पोलर एंड जो है उसको हिट करता है, अपोज करता है. सो दिस इज अबाउट द एंड there are different type of transport occur through membranes. Okay, through membranes, membrane के द्वारा जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है. that is types of transport कौन कौन सा होता है देखते हैं अभी. ओके, मैंने आपको बोला है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना. कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड देयर आर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट occur in the membrane. In membrane there are types of transport. Okay, and this transport is of two types. One is called as passive transport and other is called as active transport. Okay, what is transport? When the molecules move from one place to another place, from cell to outside or outside to cell is called as transport. और ये ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है. पैसिव मीन्स विदाउट एनर्जी. Passive means without energy. Passive means high concentration to low concentration. Okay, passive means along the concentration gradient. Okay, तीन कैरेक्टर है जिसके पैसिव के. और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली याद रखो बेटा तीन टाइप से होता है. one is called as सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? कौन से भी मॉलिक्यूल हो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं उसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन. ओके, एंड इन दैट सिंपल डिफ्यूजन व्हाट हैपन? मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, एंड सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है रैंडम होती है, डायरेक्शन लेस होती है और कहीं से भी होते हैं. उसको मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं है. ओके, नो नीड ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द सिंपल डिफ्यूजन. ओके, एंड इन सिंपल डिफ्यूजन अगेन व्हाट हैपन? मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर concentration to lower concentration. Then second is after simple diffusion, second is facilitated diffusion. What happen in facilitated diffusion? In facilitated diffusion, special proteins are required, membrane proteins are required. But remember, in facilitated diffusion, there is no need of ATP. No need of ATP. Facilitated diffusion में क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव होते हैं. उसके लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत है, मैग्नेटिक की जरूरत नहीं है. उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. और थर्ड जो टाइप है, थर्ड इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. नाउ रिमेंबर, osmosis is also called as special type of diffusion. Why? Because osmosis require semi-permeable membrane. One thing, osmosis require two different solutions with two different concentrations. Second thing, and third thing is very important in osmosis is in osmosis only water molecule move. Solution में से क्या होता है? खाली सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, इसलिए उसको कहा गया है स्पेशल डिफ्यूजन कहा गया है. इसको ऑस्मोसिस कॉल्ड एज स्पेशल डिफ्यूजन.
So this is about the types of passive transport. Now what is active transport? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसका उल्टा होगा, मतलब क्या होगा, नीड एनर्जी की जरूरत है। कौन सी एनर्जी लगती है बेटा, एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, बायोलॉजिकल एनर्जी तरह से हम बोलते हैं, उसकी जरूरत है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे हाई टू लो बोला था, उधर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स फ्रॉम लो टू हाई। और यहाँ पे अगर हाई टू लो होता है तो उसको अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला था, तो उधर क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। सो ये तीन डिफरेंस है किसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये बेसिक तीन डिफरेंस है। पहला डिफरेंस विदाउट एनर्जी, यहाँ पे एक्टिव में एनर्जी चाहिए। दूसरा डिफरेंस मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, कहाँ पे, पैसिव में। उधर क्या हो रहा है, ओके, एक्टिव में क्या हो रहा है, लो टू हाई होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के तीन टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन जिसमें रैंडम मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, नो मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर, ओके। कहाँ से भी होता है मूवमेंट, फैसिलिटी डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत है, ओके, नो नीड ऑफ एनर्जी। एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल मूव हो सकता है, कहाँ पे, ऑस्मोसिस में, तो सेमी मेम्ब्रेन से। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑकर थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, फ्लूइड मोजाइक है, मतलब उसका फ्लूइडिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है मॉलिक्यूल को, ओके, जिसके अंदर से सब्सटेंस पास होते हैं, ओके। और फॉस्फोलिपिड लेयर इज मेड अप ऑफ फ्लूइडिटी एंड दे आर हैविंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फॉस्फोलिपिड जो बना है ना, मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड बनता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है, ओके। उसके अंदर कुछ ऑलिगोसैकेराइड नाम के भी सब्सटेंस शुगर रहते हैं ना, उसको ऑलिगोसैकेराइड बोलते हैं। उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स आल्सो प्रेजेंट, ओके। एंड सम ऑफ द मेम्ब्रेन आल्सो हैविंग एंटीजन स्पेसिफिक, कुछ मेम्ब्रेन एंटीजन स्पेसिफिक भी रहते हैं, जैसे कि आरबीसी के ऊपर आपको पता होगा एंटीजन रहते हैं ना आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर, ओके। सो दिस इज अबाउट एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, मतलब हाई टू लो हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट की मैंने आपको तीन टाइप बताई है। सिंपल डिफ्यूजन में न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऑस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट होती है। और मैंने पहले बोला आपको क्या कि पोलर मॉलिक्यूल्स cannot pass through the non-polar lipid bilayers, पोलर मॉलिक्यूल नॉन-पोलर लिपिड बायलेयर से पास नहीं हो सकते, तो उनको लेके जाने के लिए स्पेशल प्रोटीन चाहिए और उसको बोलते हैं फैसिलिटी डिफ्यूजन्स, ओके। नाउ व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड एटीपी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट मींस अपोजिट, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में होता है क्या मूवमेंट यहाँ पे, एंड विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, अगर लो से हाई तक चाहिए तो एनर्जी की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूटिलाइज होती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, सोडियम एंड पोटेशियम पंप जो होते हैं ना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं, ओके। उसके बाद आफ्टर मेम्ब्रेन, मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल बताया, आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली सेम है, उसका नेचर भी बेसिकली सेम है, ओके। तो इसलिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉइंट जो है दोनों के अंदर कंबाइनली ले लिया है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नाउ सेल वॉल। आपको मैंने पहले बताया है कि यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, ओके। सेल वॉल, ओके। व्हाट इज सेल वॉल, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल का मेम्ब्रेन जो है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए सेल वॉल फॉर्म होती है, ओके। एनिमल सेल में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, वहां पे सेल मेम्ब्रेन है। और अगर सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो वो बॉडी रिजिड होती है, किसी एनिमल की या किसी प्लांट की या फंगस की वगैरह या बैक्टीरिया की, तो उसमें क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एंड सेल वॉल इज नथिंग बट द नॉन लिविंग सब्सटेंस
rigid substance found in the outer to plasma membranes. प्लाज्मा के बाहर रहता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहता है सेल वॉल. एंड कहाँ रहता है सेल वॉल? बैक्टीरिया में रहता है. बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट में आ गया, उसका तो हमने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी. मगर यूकैरियोट में कहाँ आता है? फंगाई में आता है, प्लांट में आता है और कुछ प्रोकैरियोट में आता है, जैसे कि डायटम्स वगैरह है ना, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो है उसमें आ जाता है. सेल वॉल ऑफ द algae is made up of. algae का जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या रहेगा? दे कंटेन सेलुलोज, गैलेक्टान्स, मैनान्स, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स. algae के अंदर जो algae का जो सेल वॉल है उसके अंदर का कंटेंट मैं बोल रहा हूं आपको, सेलुलोज, गैलेक्टान्स, मैनान्स, मिनरल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट रहता है. एंड प्लांट सेल वॉल के अंदर क्या है? प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन या कभी कभी प्रोटीन भी है, या कभी कभी आपको पता है अगर प्लांट के सेल डेड है जैसे कि जाइलम एंड सेरेन्काइमा तो उसके अंदर सेल वॉल के अंदर लिग्निन भी होता है. क्या? So basically cell wall is nothing but the non-living substance. It is rigid substance and it give framework to the cell. Cell को framework देता है, structure देता है कौन? Cell wall. और cell wall में क्या रहता है? अगर आप algae में देखते हो तो algae के cell wall में क्या रहता है बेटा? सेलुलोज है, गैलेक्टान्स है, मैनान्स है, मिनरल्स है, कंपोजिशन है, कैल्शियम कार्बोनेट है. प्लांट के सेल वॉल में क्या है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन्स. ओके, कभी कभी आपको पता है डेड सेल है अगर तो उसके अंदर लिग्निन है. ओके, या फिर सुबेरिन भी रहता है एंडोडर्मिस के सेल में. सो ये सेल वॉल का कंपोजिशन चेंज होता है कहाँ पे? प्लांट टू प्लांट्स. ओके, सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल. ओके, जब प्लांट यंग रहता है तो क्या बनता है? प्राइमरी वॉल. तो सबसे पहले याद रखो सेल वॉल बनता कैसे है? जब भी प्लांट की सेल डिवाइड होती है तो दो न्यूक्लियस के अंदर एक प्लेट फॉर्म होती है. उस प्लेट को बोलते हैं हम लोग कैल्शियम पेप्टेट या उसी को बोलते हैं मिडल लैमेला. क्या बोलते हैं? मिडल लैमेला. और ये मिडल लैमेला कब बनता है? मिडल लैमेला इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. जब सेल में साइटोकाइनेसिस होता है, जब सेल में सेल डिवीजन होता है तो मिडल लैमेला बनता है. मिडल लैमेला के बाद क्या बनता है बेटा? प्राइमरी वॉल बनता है. प्राइमरी वॉल एंड दैट प्राइमरी वॉल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्राइमरी वॉल की वजह से क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ फुल्ली हो जाती है और बाद में ग्रोथ डिमिनिश होती है, मतलब स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है. ओके, क्यों? क्योंकि प्राइमरी वॉल के बाद क्या आता है? क्या बनता है? सेकेंडरी वॉल. एंड व्हेन सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म एट दैट टाइम द सेल गेट मैच्योर, लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. सेकेंडरी वॉल बनने के बाद सेल में जो कैपेसिटी है डिवाइड होने की क्षमता कम हो जाती है. और याद रखो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं. सेकेंडरी वॉल कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंडरी वॉल की क्लास कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, उसी को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो अगर अंदर से बाहर जाओगे मतलब साइटोप्लाज्म से बाहर जाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाद क्या आएगा? सेकेंडरी वॉल. उसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी वॉल. उसके बाद क्या आएगा? मिडल लैमेला. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. मिडल लैमेला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कनेक्शन रहता है किसके साथ? सेकेंडरी वॉल के साथ. ओके, और अगर अंदर से बाहर जाते हो तो मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे लेयर फॉर्म होते हैं सेल वॉल में. एंड मिडल लैमेला इज लेयर मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेप्टेट. मैंने बोला आपको सेल डिवीजन के टाइम में ये बनता है, नेबरिंग सेल को जोड़ता है ये कौन? मिडल लैमेला. और उसके अंदर क्या रहता है? प्लाज्मोडेस्माटा. व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? कनेक्शन बिटवीन टू सेल. दो सेल के अंदर का जो कनेक्शन है जहां पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है एक सेल से दूसरी सेल में जाता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. आपको पता होगा एनिमल टिश्यू में जैसे जंक्शन रहता है एपिथेलियल टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू में जैसे जंक्शन रहता है वैसे प्लांट टिश्यू में क्या होता है? प्लांट सेल में क्या होता है? दो सेल के अंदर कनेक्शन रहता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं. नेबरिंग सेल को जोड़ता है ये कौन? प्लाज्मोडेस्माटा. और जिसके द्वारा सब्सटेंस मूव होते हैं उसको हम सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहते हैं. सिम्प्लास्ट मूवमेंट मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर का जो कंटेंट है, वाटर है, मिनरल है, वो एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरी सेल में जाते हैं. इसके द्वारा प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जाते हैं. सो दिस इज अबाउट द प्लाज्मा. मैंने आपको बोला है प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में. मैंने आपको बोला है फंगल के सेल वॉल में क्या रहता है? फंगल सेलुलोज, काइटिन एंड
N गैलेक्टोसामाइंस, ओके, जिसको हम NAG कहते हैं। बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या रहता है? स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन, अमीनो एसिड्स, यूरेनिक एसिड रहता है। आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या रहता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन और यूरेनिक एसिड है, और आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या है? स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन है। ओके, इसके आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में जो एंसियन बैक्टीरिया है उसी के साथ साथ यूग्लिना जो है, यूग्लिना उसकी जो लेयर बनती है वो पैलिकल से बनती है, इलास्टिक रहती है ना। यूग्लिना में जो आउटमोस्ट लेयर है उसको हम पैलिकल बोलते हैं, इलास्टिक रहता है। आपको पता होगा यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है, और मतलब ऑटोट्रॉप भी है और हेटेरोट्रॉप भी है ना। लाइट है तो ऑटोट्रॉप है, लाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉप है, उसको यूग्लिना बोलते हैं। ओके, और बाकी के जो कंपोजिशन मैंने आपको बोला है, सेल में जो लेयर बनते हैं तो सबसे पहले बनता है मिडल लैमेला, उसके बाद बनती है प्राइमरी वॉल, उसके बाद बनती है सेकेंडरी वॉल। तो ऐसे लेयर फॉर्म होते हैं कहाँ पे? सेल वॉल के अंदर। और प्लाज्मोडेस्माटा जो है दो सेल का कनेक्शन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है। अभी फाइनली मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या फंक्शन क्या है, किसका, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन आपको सबको पता है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज दे गिव शेप टू द सेल। सेल वॉल की वजह से क्या होता है? सेल को अलग अलग शेप आता है, ओवल, ओके, सर्कुलर, और में भी रेक्टेंगुलर, अलग अलग टाइप के सेल बनते हैं ना, हेक्सागोनल वगैरह वगैरह। तो सेल का शेप आता है किसकी वजह? सेल वॉल की वजह से। नंबर 2, दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन से, मैकेनिकल डैमेज से सेल को प्रोटेक्शन करता है, नंबर 2। नंबर 3, दे हेल्प इन द सेल टू सेल जंक्शंस, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए सेल वॉल का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा रहता है, और सेल वॉल क्या करता है? दोनों सेल को कम्युनिकेशन करता है, इंटरेक्शन करता है, जोड़ता है। और सबसे लास्ट जो फंक्शन है सेल वॉल का, इट एक्ट्स एज अ बैरियर ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स। जो मैक्रोमोलेक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल है, वो मैक्रोमोलेक्यूल सेल को अंदर आने से बचाता है। कौन? सेल वॉल। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। एंड आज हमने जो पॉइंट डिस्कस किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में डिस्कशन किया है। ओके, Take for instance animal cells in which the plasma membrane forms the outer boundary of the cell. But in fungi and plant cells, the plasma membrane is covered by a cell wall which forms the outer boundary. Interestingly, the composition of the cell wall is different in different eukaryotic cells. In algae, the cell wall is made up of cellulose, mannans, galactans and calcium carbonate, whereas in fungi, it is made up of chitin and glucans. On the other hand, a plant cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins, consists of 3 layers: the middle lamella, primary wall and secondary wall. The middle lamella, mainly made of calcium pectate, lies between neighboring cells and glues the cells together. The primary wall is the first formed wall that develops when the cell is growing. It is thin, elastic and extensible. However, its growth capability diminishes as the cell matures. The secondary cell wall develops after the cell has matured. It is formed on the inner side of the cell and faces the plasma membrane. Interestingly, the secondary cell wall and lamellae do not occur as continuous layers, as they are interrupted by plasmodesmata, fine strands of cytoplasm that facilitate the transportation of materials between different cells in a plant. The cell wall is an important part of the cell as it lends shape to the cell, protects it from mechanical damage and infection, prevents the entry of undesirable macromolecules such as nucleic acids, and also aids in cell-to-cell interaction.
though a cell wall may be present or absent in different types of eukaryotic cells, these cells are the basic unit of life in many organisms, including plants and animals. The cell, the basic unit of life in all organisms, has several organelles embedded in its cytoplasm. These organelles are surrounded by a thin membrane called the plasma membrane, which not only separates the extracellular environment from the cytoplasm, but also gives shape to the cell. Before the advent of the electron microscope, scientists conducted chemical studies on the cell membrane and deduced that it is composed of lipids that mainly consist of phosphoglycerides. These lipids are arranged in a bilayer with the polar hydrophilic head of both layers pointing outward towards the aqueous environment, and the nonpolar hydrophobic tail made of saturated hydrocarbons pointing inward. Such an arrangement not only protects the tail from the aqueous environment, it also prevents polar molecules such as nucleic acids, proteins and ions from diffusing through it. Later, biochemical investigations revealed that apart from lipids, proteins and carbohydrates too are a part of the cell membrane. Moreover, the proteins are arranged in two forms, peripheral and intrinsic. Peripheral proteins lie on the surface of the membrane and can be easily removed by physical methods. On the other hand, intrinsic proteins are totally or partially embedded in the bilayer and can be removed only after disrupting the entire membrane. Scientists also deduced that the ratio of proteins to lipids varies greatly between different types of cells. For instance, the cell membrane of red blood cells is 52% proteins and 40% lipids. The advent of the electron microscope helped scientists better understand the structure of the cell membrane, and finally in 1972, Singer and Nicholson put forth the fluid mosaic model, which was widely accepted by the scientific community. This model stated that lipids are found in the form of a fluid bilayer. This quasi-fluid of almost fluid-like nature allows proteins to move laterally within the bilayer, and this ability of the membrane to allow the movement of molecules within it is referred to as membrane fluidity. The fluid nature of the membrane also allows the cell to perform important functions such as cell growth, the formation of intercellular junctions, secretion, and cell division. All these functions require flexibility in the membrane. For instance, during cell growth and cell division, the membrane has to extend. The cell membrane also guards the entry and exit of different molecules and ions in and out of the cell. However, the cell membrane is selectively permeable, which means the lipid bilayer allows only certain small nonpolar substances such as oxygen and carbon dioxide molecules to pass freely through it, while selectively permitting ions and other polar molecules, including water, to pass through it with the aid of membrane proteins. The transport of these ions and molecules takes place either through passive transport or through active transport. In passive transport, substances require no metabolic energy to move across the membrane. Passive transport occurs either through diffusion or osmosis. In a cell membrane, we observe simple diffusion and facilitated diffusion. In simple diffusion, oxygen and carbon dioxide molecules freely move across the membrane from higher to lower concentration,
whereas larger molecules, such as glucose, are transported by facilitated diffusion, in which carrier proteins in the membrane change their shape and accelerate the diffusion process. On the other hand, osmosis refers to the movement of water molecules across the cell membrane through diffusion. In active transport, transmembrane proteins act as pumps and utilize the energy from ATP to move substances against their concentration gradient, that is, from lower concentration to higher concentration. An example for this is the sodium-potassium pump. Sometimes, glucose is also transported against the concentration gradient via active transport. The cell membrane, which helps in the transport of substances,